कर देंगे। अगर वो बंद भी कर देते हैं, जो पोजीशन अभी है, कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, पहले भी पोजीशन खराब है, खुदकुशियां हो रही हैं, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है किसानी को बचाने के लिए? हमारे अगर मैनिफेस्टो को आप पढ़ें और उसकी कॉपी मैं दे सकता हूं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं। अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही? तो हमारी जो फिलॉसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको तो मैं उड़ा देता हूं। अब ब्लैक मनी इज ए डिफिकल्ट चैलेंज। नरेंद्र मोदी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते मैंने नोटबंदी कर दी, खत्म हो गया, क्या लगा। तो बहाना है। अमरिंदर सिंह जी अभी बैठे हैं, अभी हमने मीटिंग की अंदर, देश पंजाब के युवाओं को रोजगार दिलवा रहे हैं। सिंपल मामला नहीं है, कैची फ्रेजेस से रिजॉल्व नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड बात अंदर चल रही है। ऐसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। तो हिंदुस्तान को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। Mohammed from NDTV and then Rohit from Bhaskar. So you have been mentioning in your speeches that you will save the federal structure. You are fighting this for saving the federal structure. In 1970s, the Punjabi Suba movement in Punjab was also for strengthening the federal structure, and it was crushed, and partly it is blamed on Congress party also. So why Punjab and Punjabis should trust you on this? Punjabis should see my actions, right? And I can tell you, if you look at my political career, you can see my action. Don't just look at my words. I came to Punjab and I've learnt a lot from the Punjabi people. In fact, if you were to ask me, you have given me more than I have given you. So I have in a sense, a debt to you. Qarz hai. So in my mind, I believe that the people of this state, they have a particular spirit. That spirit has taught me quite a lot. I'll tell you a small story. I remember, and this has never left my sister or my mind, ever. It will never leave. I remember when in 1977, my grandmother lost the election. There was no one in our house. Nobody. But there were Sikhs in my house. She was protected by Sikhs in 1977. I'll never forget that. Right? So I have, in my mind, it's a strange thing, but there is a debt that I feel I owe the people of Punjab. It's strange. In a similar way, I feel I owe a debt to the people of Tamil Nadu. I don't know why, but I have that feeling inside. So that's the first thing. Second thing is, look at my actions. Land acquisition bill. I fought, I got beaten up, I got abused. Nyamgiri, I fought, I got beaten up, I got abused. Manrega, abused. Right? Farm bill, I'm standing in front of the farm bill. I'm standing with the people of Punjab and saying, look, I've come here, I'm standing with you. I understand this is a risk for your future. So you look at my actions, you will see that I am a person who instinctively, I feel when I see some injustice being done, I feel for that person instinctively.
If you see one strong man beating a weak man, automatically I am on the side of the weak man. This may be a failing. In fact, this is why I get beaten up so much in politics. It might be a failing. Every time I'm also thinking to myself, yeah, why? But I have that inside me. If I feel that injustice is being done to Punjab, I'll be standing on Punjab side, no matter what. If I feel injustice is being done to the Dalit girl in UP, I'll go there. I'll get 2-3 lathis, no problem. That's my nature. That's what I've been taught. I don't know any other way. And frankly, I can see right now that my political path would have been much easier if I didn't have this. अगर ये मेरे अंदर नहीं होता, but वो है, अब मैं उसको कैसे निकालूं? That's why people of Punjab should trust me. Thank you, sir. Rohit from Bhaskar. राहुल जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि जो किसानों के 3 ये जो अध्यादेश आए हैं, इसमें 15 करोड़ किसान ही नहीं 75 करोड़ पीडीएस लाभार्थी भी प्रभावित होंगे। इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, मोदी जी ये कहते हैं कि भाई ये जो अध्यादेश आ रहे हैं इससे किसानों को फायदा होगा, मंडी नहीं खत्म होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर किसानों को फायदा होता तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि ये किसानों के हक में है? पंजाब में आगे क्यों नहीं बोलते? पंजाब के किसानों के साथ खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? पहला सवाल, जैसे मैंने कहा, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। इससे सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होगा, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा। एंड में किसान की जमीन जाएगी, उसको सही दाम नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में, मंडियों में वर्कर्स काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, किसान जाता है, लोडर्स होते हैं, लाखों में होंगे हिंदुस्तान में। उनका क्या होगा? अंबानी जी, अदानी जी ऑटोमेट कर देंगे, मशीनें लगा देंगे। ये जो लाखों लोग हैं जो आज एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करते हैं, इनका क्या होगा? ये सब गुलाम बनेंगे। तो ये रियलिटी है। Thank you, sir. अब एक बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मगर इनको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया। तो इनसे भी 2-3 सवाल पूछ लीजिए। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, विशाल भाई, प्लीज टेक द माइक। सर, आप दोनों से ही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी थी, इसीलिए उन्होंने 3 जो बिल थे वो लागू कर दिए जब टनल पे गए थे। तो उसके बाद क्योंकि पिछली सरकारें इनको लागू नहीं कर पाई थी और लगातार ही सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे स्टेट का मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, चाहे 19 में आपका मैनिफेस्टो था, कि एपीएमसी एक्ट को आपने बड़े जोर शोर से वहां पे उठाया था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया जाएगा, या अभी भी आप मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हुए हो? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप करेंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स थे शायद, उसमें अगर आप पॉइंट्स देखें तो उसमें हमने कहा था हम फार्मर्स मार्केट डेवलप करेंगे। उसमें हमने कहा था कि हर 4 किलोमीटर हमें हम मंडी लगाएंगे। उसमें हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म टू फोर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर देंगे।
नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 कानून के साथ पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसलिए पंजाब का किसान खड़ा है, इसलिए हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर सेशन बुला रहे हैं जल्दी इसको लेके। You'll have to take one question. Can we go to Kanchan from the Indian Express? सेशन वाला सर बता दीजिए जरा। स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जी इसको लेके। यस यस, स्पेशल सेशन भी प्लस लीगल जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और जो आदरणीय राहुल जी ने कहा, अगर आप 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसका बिंदु नंबर 7 क्लॉज नंबर 12 अगर पढ़ेंगे तो वहां फार्मर्स मार्केट का पूरा खाका दिया गया है। धन्यवाद। कंचन जी। Rahul ji, Yogi, the CM of UP, has said that Hathras rape was an international conspiracy. What do you think about that? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab. The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup, and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother, helping her through a medical checkup. I'm her son also, after all, and I have to look after my mother. Another Thank question you. on And the they were, Hathras- and madam, they were Hathras rape. supporting that ordinance. The other thing is, yeah, of course, which the Akalis won't tell you, is that they have worked with the BJP. उनके साथ बीजेपी साथ उन्होंने सालों काम किया है, और जब ये 3 बिल पास हो रहे थे उनकी मदद अकाली दल कर रही थी। तो वो तो पूरा पंजाब का किसान जानता है। आपका दूसरा सवाल क्या था? About the Hathras rape being a international conspiracy, Yogi ji has said. I mean, Yogi ji is entitled to his opinion. He's more than welcome to imagine whatever he wants to imagine. What I saw there was a lovely girl was molested. Her neck was broken. Her family was threatened. And the people who did it, no action was taken against them. If Mr. Yogi sees an international conspiracy, well, that's fine. That's his prerogative. What I saw was a tragedy. The Chief Minister of Uttar Pradesh should have had the decency to say, this is a tragedy, and I will look into it and I will protect this family and this girl. थैंक यू। आई थिंक वील नीड टू वाइंड अप बिकॉज आपका आज हरियाणा का प्रोग्राम भी है पंजाब के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत सारे साथियों से, आज हम सवाल नहीं ले पाए, पर दे विल बी अनदर टाइम फॉर राहुल जी विल बी बैक। Thank you very much.